Book Flamingo. Lesson number 5, Indigo. Book Flamingo. Lesson number 5, Indigo. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. When I visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. 1970 की बात है. गांधी जी मेरे से कहा कि ब्रिटिश लोगों को इंडिया से भगाने का आग्रह मेरा जीवन में कैसे आ गया. He had gone to the December 1916 annual convention of the International Congress Party in Lucknow. He had gone to the December 1916 annual convention of the International Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. Delegates means representatives. During the proceedings, Gandhiji recounted means told. A peasant came up to me, looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Chambran and I want you to come to my district. Gandhiji had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. Gandhiji said, a peasant came to me. Peasant means farmer. Kisan. Came to me looking like any other peasant in India. दिखने में और किसान जैसा लगा. Poor and emaciated. गरीब और emaciated, भूखा. So Gandhi said the peasant was poor and emaciated. Do you believe that a peasant is poor and emaciated? But Gandhiji said he was poor and emaciated. लोगों को देख के हिसाब किताब करने वाली एक बात. ये peasant came up to me looking like any other peasant in India. और किसान जैसा दिखाई दिया. Poor and emaciated. In my opinion, peasants are not poor and emaciated. Because they do farming and they get the harvest and they use the harvest and then the rest of the harvesting item they sell, but they are not getting money properly
because of the government and the other people, those who are interfering. Anyway, the writer said, a farmer is a poor person. He came to me and requested me to come to our district, which is in Bihar. It is in the towering Himalayas near the kingdom of Nepal, and the peasant's name was Ram Kumar Shukla. Under an ancient agreement, arrangement, tradition, under an ancient arrangement, the Chambaran peasants were sharecroppers. एक पुराना परंपरा के आधार पर द चंबारण पेसेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स, उधर के किसान शेयर क्रॉपर्स थे, फसल के हिस्से पर काम करने वाले किसान। किसी को ज़मीन दे देते काम करने के लिए, उसमें से जो मिलता है और उसका एक हिस्सा उसको देंगे। दिस इज़ द कंडीशन। The persons, those who are working like this, are called sharecroppers. किसी भी ज़मीन पे काम करने के लिए और ठेका लेके काम करने के लिए परमिशन मिलता है, और उसमें जो भी उपज निकलता है उसका एक हिस्सा उसको मिलेगा, बाकी वापस देना है। ज़मीन जिसके, अगर ज़मीन अपना है, कृषि करने का कोई हिसाब किताब पैसा कुछ भी नहीं है, तो that farmer is forced to give the land in this way. He will get money and he will be asked to do something, and he will sow the seeds and the harvest will come, and the person can keep a part of that, and the rest of the part he has to give to the person who is supporting to do agriculture. So in this way, those who are working are called sharecroppers, and this Rajkumar Shukla was a sharecropper. He was one of them. He was illiterate but resolute. So illiterate means unpad, but he was resolute. Resolute means determined. Determined means दृढ़ निश्चयी. So we have seen this person. He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. And somebody had probably said, speak to Gandhi. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system that is existing in Bihar, and somebody told him to go and speak to Gandhi.
वो इसलिए यहाँ आ गया गांधी जी से मिलकर चंपारण में होने वाले जो लैंडलॉर्ड सिस्टम को ज़रा देख लें, वहाँ क्या हो रहे क्या नहीं हो रहे। किसी ने बोला अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गो एंड मीट गांधी। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. बड़े बड़े लोगों से मिलने जाते समय इस तरह की बातें आते हुए हमें देखने को मिलता है। गांधी जी से उसने अपनी बात बताई तो गांधी जी ने उससे कहा भाई मेरा कोई अपॉइंटमेंट है कानपुर और उसके बाद आई वांट टू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। गांधी जी जहाँ कहीं गए वो भी उसके पीछे पीछे गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। प्रोग्राम के बाद वो अपने आश्रम में आ गया अहमदाबाद में, गुजरात में। शुक्ला वहाँ भी पहुँच गए। हफ्तों तक वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स डेट ही बग्ड। वो पीछे पड़ गया, साहब कोई आपके पास टाइम नहीं है तो एक डेट तो दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंडेंसी एंड स्टोरी गांधी सेड I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. उसने कहा, उसने देखा कि शेयर क्रॉपर्स का जो इम्प्रेशन एंड टेनासिटी, डिटर्मिनेशन। टेनासिटी मीन्स डिटर्मिनेशन। I have to be in Calcutta on such and such date. उसने बोला मैं इन तारीखों में कलकत्ता में होगा। and come and meet me and take me from there. वहाँ आके मुझे चंपारण में ले जाओ। पहले मैंने बताया चंपारण बिहार में है, अभी उसका मीटिंग कलकत्ता में है। चंपारण से वो कलकत्ता पहुँचे, वहाँ से उसका खुद का खर्चा में गांधी जी को साथ लेके जाए। पहले उसने बोला था दिस पर्सन इज पुअर एंड इमासिएटेड। अगर ऐसा गरीब है, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उसी से कह रहे कि तो कलकत्ता में आओ, मेरे से मिलो और वहाँ से मुझे चंपारण ले जाओ। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी अच्छी बात है। नेता लोग ऐसा बेवकूफ़ बनाते लोगों को, खुद का एक भी पैसा खर्च ना हो, जिसको जो काम है वो पूरा खर्च करें। इस तरह का एक गरीब से व्यवहार करने वाले गांधी जी को हमें ये देखने को मिलता है, जबकि हम उसको राष्ट्रपिता मानते थोड़ी है। तो अभी राष्ट्रपिता है भारत के, लेकिन वो ऐसे ही किसान से कहा कि कलकत्ता में आ जाओ और मुझे वहाँ से लेके जाओ। इसका मतलब जिसको ज़रूरत है उसको काम का पीछे पड़े रहना पड़ता है, आदमी का पीछे पड़े रहना पड़ता है, ये बात बता रहे। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. जैसा कहा गया वो कलकत्ता पहुंच गया। He was sitting on his haunches. haunches means पैर का बल से बैठना।
वैसे गांव के लोग जैसे बैठते हैं, बैठ के पैर जमीन पे टिका के हिप का बल से बैठ जाए, दैट इज कॉल्ड हॉन्चिंग। वो वहां जाके गांधी जी का इंतजार किया। When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. वो देखा गांधी जी तो आ ही गए, लेकिन एकदम वो इंटरफियर नहीं किया। गांधी जी वहाँ आए, मतलब मीटिंग के लिए आया, अब वो मीटिंग अटेंड करेगा और उसके बाद वो फ्री होगा तब उससे मिलना है। ये किसान का जो डिसिप्लिन है उसको दिखाता है। अनपढ़ है तो भी कुछ ऐसे मैनेर्स होता है, वो एक मैनेड किसान कह सकते हो। हम लोग क्या करते, दो जने बातें करते हैं तो उसमें किसी से कोई काम है तो उसका बीच में अपनी बातें रखता है। ये नहीं सोचते कि दोनों के बीच में बात हो रही है तो मुझे वेट करना पड़ेगा। नो, वो इंटरफेयर कर लेते। और कोई काम कुछ करते रहते होंगे, अंदर जाना है तो तुरंत जाके बस मे आई कम इन। सपोज यू गो टू द प्रिंसिपल and principal is having a talk with somebody, and in the midst of the talking you will say, madam may I come in? This is our habit. Leave that habit, see the situation and then do something. ये सब मैनर्स में आता है, ये सीखना होता है। कई बार बोलने के बाद भी हम ये नहीं सुनते हैं क्योंकि हम बिजी है, हमें पहुँच से ही हमारा काम होना चाहिए। नो, लर्न समथिंग फ्रॉम राजकुमार शुक्ला। गांधी जी अराइव्ड, he waited till Gandhi was free. Note that line. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. दोनों पटना की ओर चले गया ट्रेन में। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने उसको एक घर पे ले गया। उस घर पे एक लॉयर रहते थे। द नेम ऑफ द लॉयर राजेंद्र प्रसाद, एंड he was the president of the Indian National Congress at that time, and after that he became the president of India, the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. यही राजेंद्र प्रसाद, वो कहता है he was a lawyer। इस साल का क्वेश्चन में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं, इसलिए यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी लाइन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पर्सन and a particular word and everything. And there he took him to a lawyer named Rajendra Prasad. Rajendra Prasad कौन था before becoming the president of India? क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉयर शब्द है तो वो लिखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वही लिखना है, लॉयर नहीं तो। अगर लॉयर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है तो हमें लॉयर लिखना है। जैसे आप समझ में आ गया होगा जो भी है। एंड लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही आदमी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। जब ये पहुंच गए, राजेंद्र प्रसाद वहाँ नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला आज से पुअर योमन। राजेंद्र प्रसाद का सर्वेंट्स ने सोचा कि ये आया हुआ आदमी कोई योमन है। योमन मीन्स फार्मर। who pestered their master to help the indigo sharecroppers. Who pestered? Pestered means asking for favor, asking for help. मदद मांगे
मालिक को परेशान करने के लिए आया हुआ कोई इंडिगो शेयर क्रॉपर से। इंडिगो मीनिंग आता होगा, नील कहते हैं। इंडिगो के नाम से बहुत सारी चीज़ें, अफीम भी कहते हैं, नील भी कहते हैं, और कुछ अलग कलर भी कहते हैं। द एक्चुअल मीनिंग you have to compare with the lesson when you learn the lesson deeply. So they let him stay on the grounds with his companion. सर्वेंट ने कहा कि आप लोग वेट करो यहाँ। कलकत्ता के भाषण के बाद ट्रेन में बैठ के सफ़र करके यहाँ पहुँच गए। भूखा प्यासा तो होगा दोनों ही। whom they took to be another person. गांधी जी को भी बोला आप यहाँ बैठिए, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? गांधी जी भी बेचारा बैठ गए उधर, प्यास लगे, कोई पानी पिला ही नहीं रहे, पूछने के लिए कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने सोचा कुआं से पानी निकाल के पी लेते। वो कुआं से पानी भरने लगे। तब कोई सर्वेंट देखा, वो भागते हुए आया, गांधी जी ए रुक रुक, पानी मत निकाल। वो ये सोचा वो पानी निकाले बाल्टी में से, पानी तो वैसे डुल जाएगा, बस कुआं में ही जाएगा। अगर ऐसा जाने से क्या होगा, पानी पोल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। उसने सोचा गांधी जी वाज अनटचेबल। अनटचेबल मीन्स पता होगा सबको, अछूत व्यक्ति। तो गांधी जी को देखे वो सर्वेंट क्या जाने, ये पक्का ब्राह्मण है, खानदानी आदमी है, पूरा हिंदुस्तान को खरीदने का कैपेसिटी वाला आदमी है। ऐसा आदमी से बोला नीचे बैठ जाओ, पानी पीने के लिए बस कोशिश किया तो उसको रोक लिया, नहीं आप पानी निकाल नहीं सकते इसमें से। उस सर्वेंट का मन में ये विचार था कि ये कोई अनटचेबल है, तो साफ कप कुआं से पानी निकाल के अगर उसमें से कोई बूंद बाल्टी से गिर भी जाए तो पूरा पानी अशुद्ध हो जाएगा। फिर अशुद्ध वाला पानी को शुद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सिस्टम के आधार पर आप लोग जानते हैं। इस तरह से गांधी जी के बारे में सोचा। क्या किसी बाल्टी से पानी नीचे गिरने से कोई कुआं का पानी अछूत हो जाता है या गंदा हो जाता? यही भावना रखने वाले लोग हैं आज हिंदुस्तान में। कॉमन सेंस खुद को नहीं है और सामने वालों को कॉमन सेंस नहीं है सोचने वाला। खुद अशुद्ध होता है, दूसरों को अशुद्ध बताने वाले जो लोग, यही है हिंदुस्तान की स्थिति। गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। वहाँ से वो चंपारण की यात्रा शुरू किया। तो गांधी जी ने सोचा तो पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊँ, इट इज़ ऑन द वे। एन रूट मीन्स रास्ते में पड़ता है। कौन से रास्ते में? चंपारण के रास्ते में। पटना से चंपारण जाने के रास्ते में पड़ता है मुजफ्फरपुर। To obtain more complete information about the condition than Shukla was capable of imparting. Imparting means give. शुक्ला जी ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए he decided to go to मुजफ्फरपुर first, and he accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। उसको मालूम है मुजफ्फरपुर के कई लोगों को वो जानते हैं, वो भी उनको जानते हैं।
वहाँ पर एक प्रोफेसर रहते हैं जे बी कृपलानी। उसने सोचा उससे जानकारी लें, बिकॉज एंड ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। उसका मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन में मिला था, और इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मैं सबसे पहले आई विल गो देयर एंड विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दैट पर्सन एंड आई विल गेट मोर आइडिया about the sharecroppers than Shukla explained to him. And the train arrived at midnight, 15 April 1917. Note the date, day and year for objective type questions. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. देखो वो ट्रेन कितने बजे पहुंच गया था? आधी रात को। आधी रात को भी उसको वेलकम करने के लिए लोग कितने पहुंच गए? कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी और अपने स्टूडेंट्स गांधी जी का वेलकम करने के लिए रात को, आधी रात को रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। देखो ये प्रोफेसर का रेस्पेक्ट करने वाले जो बच्चे आधी रात को भी प्रोफेसर के साथ देने के लिए और प्रोफेसर का मदद करने के लिए पहुंचने वाला एक शिष्यगण यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन हम होता तो बोले वो आने दो यार, हमारा क्या जा रहे, उसको चाहिए तो आएंगे उतरेंगे बस। किसी टीचर ने भी बोला कि इस तरह से मदद करने के लिए यहाँ पहुँचना, दिन में होता तो बात अलग है, रात को कौन जाएगा? नहीं, रात को हमारा जो मेन टाइम है, हमें हाँ चैटिंग करने का टाइम है, तो वो छोड़ के हम तो कैसे जाएं? लेकिन सी द स्टूडेंट्स हियर एंड कंपेयर द स्टूडेंट्स विथ यू। वो प्रोफेसर का मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गया गांधी जी को, क्योंकि ये जो बच्चे तो कभी गांधी जी को जानते ही नहीं है, उससे कभी मुलाकात नहीं हुआ, फिर भी वो क्यों पहुंचा? अपने मास्टर के कहने पर, मास्टर की मदद करने के लिए। इसी बहाने क्या भी कर सकता है, गांधी जी से मिल भी सकता है। एंड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, सॉरी लेफ्ट वन लाइन। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days in the home of Professor मलकानी। मिलने गया प्रोफेसर कृपलानी से, स्टे किया प्रोफेसर मलकानी के घर पे, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। कृपलानी था प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर, वो रहा प्रोफेसर मलकानी ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ये बताने वाली बात है, गांधी जी ने कहा कि कोई गवर्नमेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाला कोई प्रोफेसर किसी अनजान आदमी को अपना घर पे सहारा देना। हम भी किसी को जानते नहीं है, अगर कोई आ गया तो बस हम उसको सहारा देंगे क्या? विश्वास ही नहीं है। लेकिन यहाँ से एक बात पॉइंट सीखना तो यही है, समटाइम्स वी हैव टू बिलीव समथिंग, समबडी। लेकिन आजकल के ज़माने में माहौल ही ऐसा है, इसलिए कोई भी एक अनजान आदमी को अपना घर पे टिकने नहीं देता। लेकिन गांधी जी विशेष करके उसको तारीफ करने के रूप में बताते, कोई भी क्या नहीं है आजकल अनजान आदमी को अपना घर पे ठहरने का व्यवस्था नहीं दे सकता, लेकिन इस आदमी ने किया और इसलिए उसका नाम लेना ज़रूरी है।
So in smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. होम रूल का समय था, गांधी जी उस टाइम माना गया वकील था। किसी वकील को कभी भी टिकने नहीं देता है। वकील को क्यों टिकने नहीं देता है? हमारे मन में ये विचार है वकील चोर है, वो सही आदमी को भी गलत बना के अपना फ़ायदा के लिए केस लड़ने वाले होते हैं एडवोकेट्स। किस पर विश्वास करें? वकील का अंदर इतना बुद्धि है, पूछो ही मत। सच को झूठ और झूठ को सच सामने वाले को मजबूर करता है कि सच को झूठ में बदलने और झूठ को सच में बदल के बोलने का ऐसा दिमाग वाले होता है वकील हो। यूँ हम देखते हैं हाँ ये एडवोकेट है, वकील है, बस यूँ है। लेकिन वकील बहुत दिमाग वाले होते हैं। उनको एक केस को ट्रायल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। इतना दिमाग लगाने वाले लोग हैं कौन सा? एडवोकेट्स। हम उसको तुच्छ समझते हैं। गांधी जी भी इस तरह का एक वकील थे उस टाइम। एंड द न्यूज़ ऑफ गांधी's advent and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। गांधी जी का आगमन, एडवेंट यानी आगमन के बारे में, गांधी जी कौन है इसके बारे में मुजफ्फरपुर से समाचार चंपारण तक पहुंच गया। ऐसे एक कलाकार आया हुआ है, तो वो हमारे कुछ मदद करने के लिए आया है, आने वाला है चंपारण में। ये सुनकर सारे लोग जिज्ञासा रखा। Sharecroppers from Chambaaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Sharecroppers दूर दूर से, कुछ लोग पैदल, ऑन फुट मीन्स पैदल, और कुछ लोग अपना कन्वेंस, अपना गाड़ी से वहाँ पर पहुँच गए अपना चैम्पियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स है वो गांधी जी को संक्षिप्त रूप में जो भी बातें बताना, कॉल्ड ऑन मीन्स मिलने आया, कि मिल के क्या करने के लिए? टू ब्रीफ हिम, जो यहाँ की जो स्थिति संक्षिप्त में बोलने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पर्सन्स ग्रुप्स इन कोर्ट, क्योंकि ये कभी कभी पर्सन्स के जो बाधा को लेके कोर्ट में भी जाया करते थे। ये बोला, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। वो गांधी जी को सब समझाया कि केस कैसे वो हैंडल करते थे और हम उसके लिए कितना फीस देते थे, क्या फीस देते थे। और यहाँ पर विरोधाभास है, दोनों तरीक़ा से समझना है। They told him about their cases and reported the size of their fees. वो उनको कहने लगा कि उसका केस कैसा है, फीस कैसा है, वो सारी बातें गांधी जी को संक्षिप्त में समझाया। लेट अस स्टॉप हियर।